outside how people long. आपका मालूम है मुंबई में it's more than 1.5 years the churches are yet to open. Lenava Sayanama, she is sitting here. Okay, no, we need to be literally thank God. Being in the house of God, we need to be literally thank God. Even I request cell leaders, you know, if your area में प्रार्थना रखना मुश्किल है, you can come to church. हमारे इसमें social distance का बराबर जगह परमेश्वर ने दिया है. Every day evening, one area can have a prayer in the churches. So somehow God has given, use it for the glory of God. Book of Hebrew chapter 11 verse 7. हिब्रुओं की पत्री, इब्रानियों की पत्री, 11वां अध्याय 7वां पद. We are meditating upon family this month. और हम इस महीने परिवार के ऊपर मनन कर रहे हैं. God is doing something. परमेश्वर कुछ न कुछ अद्भुत करेगा. Hallelujah. God is working in our life. परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम कर रहा है. He doesn't work the way human, want to work. और परमेश्वर नहीं चाहता जैसे मनुष्य काम करता है, ऐसा नहीं. No one could ever think also, such a job Maniben will get. और कोई भी ऐसा नहीं सोच सकता था जिस प्रकार से मणिबेन को परमेश्वर ने एक नौकरी दिया. The place where you humiliate, God gives you honor. जिस स्थान पे आप अपमानित किए गए हैं, उसी स्थान में परमेश्वर आपको आदर देगा. I repeatedly say always, every time, the place where you cried bitterly, don't leave that place. और मैं बार बार इस बात को कहता हूं, जिस स्थान पे आप बहुत ही रोए हैं, उस स्थान को आप कभी ना छोड़ें. You leave the place where you rejoice, but never leave a place where you are humiliated, where you are abused, accused, thrown down. और उस स्थान को शायद आप छोड़ सकते हैं जिस स्थान पे आपने आनंद मनाया होगा, लेकिन उस स्थान को आप कभी ना छोड़े जहां पर आप अपमानित किए गए हो, जहां पर आप रोए हो, जहां पर आपके लिए दोष लगाया गया हो. Very often people does, when they feel pressure, when they feel accused, abused falsely, they want to run away from that place. और बहुत बार ऐसा होता है कि जब लोगों को ऐसा दबाव महसूस होता है, दबाया जाता है, सताया जाता है, उनको पीड़ित किया जाता है, तब लोग उस स्थान को छोड़ करके भागने के लिए तैयार हो जाते हैं. God changes the times and season. परमेश्वर समय और ऋतुओं को बदलने वाला परमेश्वर है. If you cry today, you will rejoice surely very shortly. यदि आज आप रो रहे हैं तो बहुत ही जल्दी आप आनंद भी मनाएंगे. Stick on, stand in the presence of God with the word of God. परमेश्वर के वचन को लेकर के परमेश्वर की उपस्थिति में आप बने रहें. Noah was one kind of a man. He was that kind of man. He stood on the ground against all odds. और नूह एक ऐसा व्यक्ति था, हर एक परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति के विरोध में भी वो वहां पर खड़े रहने वाला व्यक्ति था. People were ridiculing him. People were mocking at him and his work. और लोग जो थे उसके काम के ऊपर और उसके ऊपर मजाक उड़ाते थे उसको लेकर के. And the day the ark took off, they know we did a mistake. और जिस दिन जहाज उठाया गया, ऊंचा किया गया, उस दिन उन सब लोगों को मालूम पड़ गया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है. Do you know one thing? Those days nobody knows how to swim. और आपको एक बात मालूम है, उन दिनों में किसी को भी तैरना नहीं आता था. Hello? Because there was no mass water. The dew will come and settle on the earth. और उस समय में आपको मालूम होगा कि पानी इस प्रकार से नहीं बरसता था, ज्यादा पानी नहीं पाया जाता था, आसमान से ओस गिरती थी और जमीनें सींची जाती थी. They were just building. They were concentrating on building big malls. They were just going on out of their mind, living in sinful world. और उस जमाने में लोग तो बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में मशगूल रहते थे और वो लोग अपने जो पापमय दुराचार में वो लोग व्यस्त रहते थे. They were drinking sin like a water. और वो लोग तो पाप को मानो कि एक पानी के जैसे पिया करते थे. They were never mind about any other things. They were not mind about anything. और उन लोगों को किसी बात की परवाह नहीं थी. Noah found favor in the eyes of God. नूह
परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाया। That's what the word of God very clearly says. Come on, by faith Noah, when warned about the things not yet seen, in holy fear built an ark to save his family. इसलिए वचन में बड़ी सुंदरता से लिखा है, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। Come on, whom to save? His own family. किसको बचाने के लिए? अपने खुद के परिवार को बचाने के लिए। In holy fear built an ark to save his family. और एक पवित्र भक्ति और भय के तहत उसने अपने परिवार को बचाने के लिए उसने जहाज को बनाया। You are a Noah in this generation. इस पीढ़ी के आप नूह है। Hallelujah. Hallelujah. We need to walk, act, think, do just like Noah did. और हमें इस समय में जिस प्रकार से नूह चला, उसने जैसे बातें की, ऐसा हमें करना है। Unimaginable things are going on these days. इन दिनों में आप कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी बातें हो रही है। The people that race against, work against, do against, doing things such vulnerably, just like the day of Noah. और आज के जमाने में हम देखते हैं कि लोग इस प्रकार से बुरी बातें करते हैं, दुष्टता भरी बातें करते हैं, और ऐसे लोग जो दुराचारी पाए जाते हैं, जैसे कि नूह के समय में पाए जाते थे। That's what it says. Twice it says, by faith he commanded the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। He was keep working. वो लगातार कार्यरत रहा। Something is going to happen, but Noah is keep working. कुछ तो होने वाला है, कुछ घटना घटने वाली है, लेकिन नूह जो है लगातार काम करते रहा। God is looking for a working person. परमेश्वर ऐसे कामकाजी व्यक्ति के सामने देखता है, उसको देखने के लिए चाहता है। Every disciple Jesus picked up, he picked them up in their working place. हर एक चेले को परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके काम करने के स्थान पे से उनको चुना। Nobody was on vacation. Nobody was on volunteer retirement. Nobody was on simply sleeping. कोई ऐसा व्यक्ति यीशु मसीह ने नहीं चुना जो वैकेशन मना रहा हो या फिर अपने आप में स्वैच्छिक निवृत्ति ले लिया हो और ऐसे आराम से सो रहा हो। Very often, what are you doing? I'm doing nothing. और बहुत बार ऐसा होता है कि आप क्या कर रहे थे? बोले मैं कुछ नहीं करता। Do something. कुछ तो करिए। Write down, my brothers and sisters, every disciple, go and read wherever the Lord Jesus met the disciple in the working place. In your working place, you need to have an encounter. और जहां कहीं भी हम देखते हैं, आप लिख लीजिए उस बात को, यीशु मसीह ने अपने सभी चेलों को उनके काम करने के स्थान पर ही उनको चुना। आपको भी परमेश्वर आपके काम करने के स्थान में चाहता है। Hallelujah. Hallelujah. You know, in your working place, God wants to meet and talk to you. Do you have an experience God in your office? और आपके काम करने के स्थान में परमेश्वर आपके साथ मुलाकात करना चाहता है, बातें करना चाहता है। परमेश्वर आपके कार्यालय के अंदर काम करना चाहता है। Somebody said. कोई कहे मैं। How many of you experience the presence of God in your office room? आप में से कितने लोग ने आपके कार्यालय के अंदर, आपके रूम के अंदर, ऑफिस के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया? How many of you wept in your chair in the presence of God? आप में से कितने लोग अपने कार्यालय के अंदर, अपनी कुर्सी के अंदर बैठ करके आंसू बहाए हैं? God is looking for those people, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में है। It's not just looking on Sunday. वो चाहता नहीं है कि केवल रविवार को देखें आपको। If you want to build a family, it's a 7 days with God. यदि आप ऐसा परिवार बनाना चाहते हैं तो 7 दिन परमेश्वर के साथ रहना है। Very often, though, even our neighbor, our colleagues, even do not know that we are a Christian, what a Christian we are. और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पड़ोसी भी नहीं जान पाता, पड़ोसी को भी मालूम नहीं पड़ता है कि हम मसीह हैं, हम ईसाई है करके। It happened. I know. I have a story. और ऐसा होता है, मेरे पास ऐसी कहानी भी है। Pastor, this person is coming to your church. He's working in our office. I never know he is a Christian. पास्टर, ये व्यक्ति कलीसिया में आता है तो हमारे पड़ोस में है, मुझे नहीं मालूम ये ईसाई है।
यहाँ के शक हुआ. और यहां आकर के उनको मालूम पड़ा. And this person was searching church for several months. और जो व्यक्ति था वो तो बहुत ही महीनों से एक कलीसिया को, चर्च को ढूंढ रहा था. How are we in the working place, my brothers and sisters? मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे कार्य करने के जगह पे हम कैसे पाए जाते हैं? So one scripture that ministered to me throughout this week, turn with me, Matthew chapter 14, verse 35-36. और एक वचन जो पूरे हफ्ते के दौरान मेरे साथ बातें करता रहा, आइए हम निकालें मत्ती रचित सुसमाचार 14, 14वां अध्याय verse 35 and 36. How Christ can work in our life. किस प्रकार से यीशु मसीह हमारे जीवन में काम करता है. Come on, everybody, come on. When the men of that place, everybody read, come on. When the men of that place recognize Jesus. वहां के लोगों ने उसे पहचान लिया. They recognize Jesus. उन्होंने यीशु को पहचाना. Do people recognize Jesus in our life? क्या हमारे जीवन के अंदर लोग यीशु मसीह को पहचान पाते हैं? God saw Noah something different from all other guys. और परमेश्वर ने नूह के जीवन के अंदर और दूसरों से कुछ भिन्न पाया, अलग पाया. What is the greeting comes out of our mouth when we meet our colleagues in the phone or in the person? और यदि हमारे साथ में काम कर, हमारे सहकर्मी के साथ या किसी के साथ बात करने के समय हमारे मुंह से क्या बातें निकलती है? We speak their language and we come and take communion here. हम उनकी भाषा में बात करते हैं और यहाँ आकर के प्रभु भोज में भागी होते हैं. Can God see any difference on Sunday and Monday, Sunday and Saturday in our life? क्या परमेश्वर कुछ भी बदलाव, कुछ अलगाव हमारे जीवन में रविवार को और सोमवार को या शनिवार को रविवार के बीच में हमारे अंदर देख पाता है? My brother used to say, मेरे भाई इस बात को कहते हैं, coming to church and going to the opposite Reliance Mart should be the same for the child of God. वो तो कहते हैं कि परमेश्वर के बच्चे के लिए, परमेश्वर के संतान के लिए, परमेश्वर के भवन में आना और रिलायंस मॉल में जाना, दोनों बात एक समान होना चाहिए. The way I walk inside, I must walk in the store also. That is the true Christian, that is the true child of God. जिस प्रकार से मैं परमेश्वर के भवन में आता हूं, उसी प्रकार से मैं उस मॉल के अंदर भी जाऊं, ऐसा मेरा स्वभाव हो. वही तो बात परमेश्वर के संतानों के अंदर पानी जानी चाहिए. That is what God is looking into our life. और यही तो बातें परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है. Sunday we can be look holy of holy. और रविवार को हम तो बहुत ही पवित्र से पवित्र दिखाई पड़ते हैं. God is more interested in Monday to Saturday. लेकिन परमेश्वर सोमवार से लेकर के शनिवार तक हमारे में और ज्यादा दिलचस्पी रखता है. God saw Noah Monday to Saturday. He is a righteous man. परमेश्वर ने नूह को देखा सोमवार से लेकर के शनिवार तक, वो तो एक धर्मी व्यक्ति पाया गया. रविवार तो सब व्हाइट एंड व्हाइट, सफेद पवित्र है. हेलो, God saw Noah Monday to Saturday. परमेश्वर ने सोमवार से लेकर के शनिवार तक नूह को देखा. God want to do something in our life and lifestyle, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में और हमारी जीवन शैली के अंदर कुछ करना चाहता So है. this is what the men in that place recognized Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस स्थान में लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना. If anybody is recognized by any person, oh, I am so sorry if Jesus is not recognized. और यदि आप किसी और व्यक्ति के द्वारा पहचाने जाते हो तो मुझे बहुत ही खेद प्रकट होता है अपने आप में, यदि आप मसीह के द्वारा, यीशु के द्वारा नहीं पहचाने जाते हैं. People recognize by, oh, this is from this state, oh, this is from this language, oh, this is from that place of work. No, first recognition must come through Jesus. और लोग तो ऐसे पहचानते हैं कि ये इस राज्य का है, ये भाषा बोलने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं. लोग हमें पहले यीशु मसीह के व्यक्ति है ऐसे करके पहचानना चाहिए. If people recognize with our tags and titles, we have dishonored Christ. यदि लोग हमारी पदवी और हमारे नाम के जरिए हमको पहचानते हैं तो इसका मतलब ये कि हम मसीह यीशु का अनादर कर रहे हैं. Come on, this is what, when the men of the place recognized, come on, when they recognized Jesus, they send word to all surrounding country. Come on, when people recognized Jesus, they sent word and they brought sick people.
और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सारे बीमारों को उसके पास ले आए। Surrounding people, when they don't recognize Jesus, they don't bring sick people. यदि आसपास के लोग यीशु मसीह को नहीं जानते तो वो लोग बीमारों को नहीं लेके आते। Every one of our house should be a healing center. हमारे प्रत्येक के घर तो एक चंगाई का केंद्र बनना चाहिए। If everybody running to the church, it is better they run to the child of God where Jesus is. यदि सभी लोग परमेश्वर के भवन की ओर दौड़ रहे हैं ऐसी बातों के लिए, तो ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोगों के घर की ओर लोग दौड़ने चाहिए, जाने चाहिए जहां मसीह पाया जाता है। Let Christ be recognized in our life. आइए हमारे जीवन में मसीह यीशु पहचाना जाए। Hallelujah. Hallelujah. He be visible in our life. वो हमारे जीवन के अंदर दृश्यमान होना चाहिए। That's what Jesus' cousin brother said. He increase, I decrease. इसलिए यीशु मसीह का जो पितराई भाई था वो कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। Let his name, let his ministry, let his work increase, not me. उसका सेवकाई बढ़ना चाहिए, उसका मिनिस्ट्री, उसका सेवकाई और उसका नाम बढ़ना चाहिए, मैं नहीं। See, this is what happened when the people recognized Jesus, they immediately became a missionary. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो लोग यीशु मसीह को पहचानते, वो लोग तुरंत मिशनरी बन जाते हैं। They became evangelists. और वो लोग सुवार्तिक बन जाते हैं। When they recognized Jesus, what did they say? Immediately they were sharing the good news. Come on, they sent word all around this country. और जब वो लोग ने यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, वो लोग तुरंत सुवार्तिक बन जाते हैं, सुसमाचार सब जगह फैला देते हैं, पूरे राज्य में फैला देते And हैं। it says, people brought all their sick to Jesus. और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग ने सबको, बीमारों को यीशु मसीह के पास लेकर Verse 36 says, and begged him to let the sick just touch the edge of his cloak, and all who touched it were healed. और उससे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उससे छुआ वे चंगे हो गए। It's all beginning with they recognized Jesus. और वो तो उस समय शुरुआत हुई जब वो लोग ने यीशु मसीह को पहचाना। Hallelujah. हालेलुया। Let people not recognize us. It's okay. They must recognize Jesus. लोग हमें पहचाने नहीं पहचाने कोई बात नहीं, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को पहचानने चाहिए। Let people forget us, but they should recognize Jesus. लोग हमें भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को पहचानने पाए। Everything we do, everywhere we go, Jesus must be recognized by others. जहां कहीं भी हम जाए, जहां जो कुछ भी हम करें, उन सब बातों के द्वारा लोग यीशु मसीह को पहचानने पाए। Lift a hand and pray, Lord, not my Hallelujah. title be recognized, but you be recognized, Lord. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु हम और कोई पदवी और ऐसे नाम से Jesus. नहीं जाने जाए, लेकिन प्रभु हमारे अंदर आप पहचाने जाएं। There is no healing happening. There is no deliverance happening. There is nothing happening because people fail to recognize Jesus. और वहां पर ऐसा कोई भी छुटकारा नहीं हो रहा है, कोई भी चंगाई नहीं हो रही, उसका कारण ये है कि लोग यीशु को नहीं पहचानते। Come on, hallelujah. Hallelujah. Lord, Jesus need to be recognized. Then only there will be a revival in our nation. वो जब यीशु मसीह को लोग पहचानेंगे तभी हमारे देश के अंदर बड़ी बेदारी आएगी। We don't need a name, fame, nothing recognition, Lord. Your name to be recognized, that's enough for us. प्रभु हमें कोई नाम या शोहरत नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु हम उन सब बातों से पहले हमारे अंदर यीशु मसीह आप पहचाने जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Amen. हालेलुया। On Monday I was sharing, सोमवार को मैं इस बात को बता रहा था। this is what it says. Anyone who doesn't give glory to God is an antichrist. और उस बात में तो इस प्रकार से कहा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह को महिमा नहीं देता है तो वो क्रिस्त विरोधी है। Any kingdom of God, any work of God is beyond the name of Jesus. It's not the work of God. यदि कोई भी राज्य और कोई भी व्यक्ति या कोई भी बात ऐसी जो है मसीह के राज्य के साथ में नहीं है तो वो मसीह विरोधी कहा जाएगा। Man,
Everything we do, Jesus should be recognized. हम जो कुछ भी करें यीशु मसीह उसके द्वारा पहचाना जाना We need to चाहिए। humbly surrender everything to God. वो हमें सब बातों को नम्रता से परमेश्वर के सन्मुख में समर्पित करना है। Is my earning, is my house, is my vehicle, is my children, everything we have, we do is recognized. Jesus is revealed. क्या हमारे कमाई के अंदर, हमारे घर के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर जो कुछ भी हम करते हैं, क्या उन सारी बातों के अंदर यीशु मसीह प्रकट होता है? Will you be able to pick out your phone, pick out your wallet and say, this is recognized by Jesus? If not, it's sin. यदि आप अपने फोन को उठाते हैं, अपने बटुए को उठाते हैं और आप ऐसा कहते हैं कि हाँ, यदि आप ऐसा कहने में समर्थ नहीं है कि यीशु मसीह के द्वारा है, तो ये पाप है। Can you say there is nothing which Jesus cannot recognize in my life? और आप ऐसा कह सकते हैं कि ऐसी कुछ भी बात मेरे जीवन में नहीं है जो यीशु मसीह के द्वारा ना पहचानी गई हो या यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह को ना पहचानती हो। You need to say the pen in our house, pin in our house, paper in our house must recognize Jesus. हमारे घर के अंदर कागज हो या कलम हो, जो कुछ भी हो, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह को पहचानने पाए। You may feel offended why pastor is too strong. That's the word of God says. हो सकता है आपको बुरा लगे कि पास्टर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर का वचन बता रहा है। People recognize Jesus. लोगों ने यीशु मसीह को पहचाना। Let that happen in our city, in our state, in our nation. हमारे शहर में, हमारे राज्य के अंदर, हमारे देश में ऐसी बात होने पाए। But these days the human name wanted to increase. Human name wanted to be great. लेकिन इन दिनों में देखा जाता है कि लोग के नाम बढ़ते हैं, लोग बढ़ते जाते हैं। You know, the name to be great. Everything we do, just a name to be great. But we need to do everything, His name to be great. और लोग चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें, हमारा नाम बढ़ जाए, हमारा नाम आगे बढ़ जाए, लेकिन जो कुछ भी हम करें उसको महिमा मिले, उसका नाम बढ़ना See, चाहिए। that's what we read in Genesis chapter 6 verse 9 says, this is the account of Noah and his family. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked faithfully with God. इसलिए यहाँ उत्पत्ति का पुस्तक 6वां दिन 9वें पद में इस प्रकार से लिखा है, नूह की वंशाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वरी के साथ चलता रहा। Hallelujah. हालेलुया। God sees, God testifies. परमेश्वर देखता है, परमेश्वर उनके बारे में गवाही देता है। Walking with God, faithfully walking with God. परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता के साथ चलना। Come on, if everything we do must be recognized by God and people recognize, it will happen only when we walk with God. वो तो बातें जब तब होती है कि यीशु मसीह को हमारे काम करने के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा लोग पहचाने, वो तब हो पाता है संभव कि हम परमेश्वर के साथ हम चलें। This man was a different man. और ये व्यक्ति तो अलग प्रकार का व्यक्ति है। Do not know how many lakhs, millions were living. One man, God says, faithfully walking with God. मालूम नहीं कितने लाखों करोड़ों लोग रहते होंगे, लेकिन परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को एक विश्वास योग्य व्यक्ति पाया। Are we too busy, my brothers and sisters? क्या हम इतने ज्यादा व्यस्त हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों? Is our work, money, things more than God? क्या हमारा काम, हमारा पैसा परमेश्वर से भी ज्यादा है? When was the last time literally opened the word of God and meditated? आखिरी समय कब था जब हमने परमेश्वर के वचन को खोला और उसके ऊपर मनन किया? We can do so many things. हम बहुत सी बातें करते हैं। Pastor, me, I can preach for hours. If I don't sit in the presence of God with the word of God, I am doing just a lecture. पास्टर होने के नाते मैं घंटों घंटों संदेश प्रचार दे सकता हूं, लेकिन यदि मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना और ऐसी प्रार्थना के साथ में तैयारी नहीं करता हूं तो केवल ये लेक्चर ही होगा। Hallelujah. हालेलुया। That everything we do should be recognizing Jesus. जो कुछ भी हम करें वो मसीह में पहचाना जाना चाहिए। Noah was recognized by God and recognized by God by others also.
और नूह तो परमेश्वर के द्वारा पहचाना गया और दूसरों के द्वारा भी पहचाना गया परमेश्वर। Genesis 6:11 says, now the earth was corrupt in God's sight, not Noah. उत्पत्ति 6:11 में इस प्रकार से लिखा है, उस समय में परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी बिगड़ गई थी, नूह नहीं। When God looked at the creation, everything is corrupt except one man. जब परमेश्वर ने सृष्टि के ऊपर दृष्टि किया तो परमेश्वर ने ये पाया कि सभी लोग जो है दुष्ट बन चुके हैं, केवल एक व्यक्ति को Come on, छोड़कर। God did not say the particular place, particular nation. Come on, the word of God says, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. और परमेश्वर ने पूरी सृष्टि के ऊपर अपनी नजर लगाई। उसने किसी एक विशेष स्थान पे नजर लगा करके ऐसा नहीं कहा कि यहाँ के लोग बुरे हो गए, दुष्ट हो गए। उसने पूरी सृष्टि पे दृष्टि करके ऐसा पाया गया कि पूरी जो संसार है वो तो बिगड़ चुका है। In God's sight, there was a corrupt and there was full of violence. और परमेश्वर की दृष्टि में तो वो पूरा जो संसार था एक दुष्ट और दुराचारी हो गया था। One man was walking with God. एक व्यक्ति, एक मनुष्य परमेश्वर के साथ चल रहा था। Hallelujah. Hallelujah. Nobody is walking, rather nobody wanted to walk, one man walking. कोई भी नहीं चलता था परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के साथ चलना भी नहीं चाहता था उस समय में, लेकिन एक व्यक्ति, एक मनुष्य परमेश्वर के साथ चल रहा था। Groupism will never work in the kingdom of God. एक समुदायवाद परमेश्वर के राज्य में कभी भी काम नहीं कर पाता। फोन करके आप चर्च जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, चर्च तक पहुंचने तक परमेश्वर टाइम नहीं देता होगा हमको। You need to be all alone also, ready to walk with God. आपको अकेले भी परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार होना है। Fixing date and time to come to the presence of God will never work. Anytime you need to walk inside. Church is always open. Anytime we can walk inside. परमेश्वर के सामने बैठना और परमेश्वर के उपस्थिति में जाने के लिए हम समय और तारीख एक नियुक्त कर देते हैं, ये कभी भी काम में नहीं आएगा। हमें हर समय, किसी भी समय परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर के साथ चलना है। Come on, earth was corrupt in God's sight, was full of violence, but that corrupt and violence was not in the life of Noah and his family. और परमेश्वर की दृष्टि में तो पूरी पृथ्वी के लोग दुष्ट और दुराचारी पाए गए थे, बिगड़े हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में केवल नूह धर्मी पाया गया था। परमेश्वर की दृष्टि में नूह ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं पाया गया। Lift a hand and ask God, my हाथ family, उठाकर हमें परमेश्वर से मांगे, God, it is just like those days today, Lord. प्रभु उस दिनों के जैसा ही आज समय पाया जाता है। Don't we see violence and corruption everywhere? क्या हम सब जगह इस प्रकार का दुष्टता और भ्रष्टाचार नहीं देखते इन जमाने में? Protect us, O Lord. प्रभु आप हमारी सुरक्षा कीजिए, संभालिए प्रभु। In your sight, I want to walk without corrupt, without violence, O Lord. प्रभु आपकी दृष्टि में परमेश्वर में Subaladarabashan. बिना बिगड़ा हुआ या दुष्ट और भ्रष्ट नहीं जानना चाहता प्रभु। Hallelujah. Protect us, O Lord. प्रभु हमारे बचाव कीजिए प्रभु। What is outside should not enter inside our house, O Lord. प्रभु जो कुछ भी बाहर पाया जाता है हमारे घर में ना प्रवेश करें प्रभु। Help us, Lord. हमारी मदद करिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं। How is our house? How is our family, my brothers and sisters? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा घर कैसा है, हमारा परिवार कैसा है? When God looked from heaven, the earth, He says corrupt and violence. Is that same thing God is looking into our house also? जब परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर निहारता है, देखता है, तो उसको पाया जाता है कि पृथ्वी बिगड़ी हुई है, दुष्टता से भरी है। क्या परमेश्वर हमारे परिवार के ऊपर नजर लगाने के समय में ऐसे ही बातों को पाता है? Is there a violence between you and your wife, you and your children, you and your relatives? You need to ask God, forgive me, Lord. Outside violences, enter inside, Lord. यदि आपके घर में आपके पत्नी के साथ, आपके रिश्तेदारों के साथ, आपके बच्चों के साथ इस प्रकार से आपको लड़ाई झगड़े की बातें हैं, अनबन है, तो आपको परमेश्वर के सन्मुख में जाकर के क्षमा प्राप्ति करना और कहना कि प्रभु ये बाहर की बातें हमारे घर में प्रवेश कर चुकी है। God saw outside. God saw outside. परमेश्वर बाहर की ओर देखता है। It should never enter inside your house. और जो बातें परमेश्वर बाहर देखता है वो आपके घर में नहीं प्रवेश करना चाहिए। Always agree, no disagreement, always argument, always fight, everything.
हर समय देखा जाए तो असहमति, हर समय वाद विवाद, ऐसा हर समय देखा जाता है घर में। That is not a family God made. और वो तो ऐसा परिवार नहीं जो परमेश्वर बनाना चाहता है। God have to be working, moving, witnessing in our house. परमेश्वर हमारे घर के अंदर कार्य करते रहना चाहिए, करना चाहिए, हमारे घर के बारे में गवाही देना चाहिए। I pray that every house in Queen City Bible Church be house just like a Noah, God looking and pleased. और मैं तो प्रार्थना करता हूं ग्रीन सिटी बाइबल कलीसिया के प्रत्येक परिवार की ओर, जब परमेश्वर देखे तो नूह के घर के समान देख करके परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। Come on, this is what it says, Genesis 6:22. Noah did everything God commanded him. और उत्पत्ति 6वां अध्याय 22वें पद में लिखा है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। Every responsibility given to Noah, he fulfilled it. जितनी भी जिम्मेदारी नूह को दी गई थी उसने सारी जिम्मेदारी पूरी किया। I want to speak prophetically to all the father, mother, every responsibility God given, your office given, government given, you will fulfill it faithfully, fearfully, wonderfully. और मैं आपके ऊपर नबूवत करके कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके परिवार के बारे में, आपकी नौकरी के बारे में, आपके कार्यालय के बारे में आपको सौंपा गया है, आप पूरी तरह से उसको कर पाएंगे। We will fulfill everything. आप सब कुछ पूरा कर पाएंगे। Nothing will be missed. कुछ भी उसमें से कम नहीं होगा। What you have to do for your son, daughter, grandson, granddaughter, everything to do, God has given you the grace. आपको जो कुछ भी आपके बेटे के लिए, अपने बेटे के लिए, सबके लिए जो करने के लिए जिम्मेदारी परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह करेगा, देगा कि आप सब बातें पूरी कर पाएंगे। You know, when God gave the mission to Noah, there was no rule book, there was no law, there was no sample, nothing. God said, I am telling you, do it. और जब नूह को परमेश्वर ने ऐसा करने के लिए आज्ञा दी तो वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं था, कोई नक्शा नहीं था। परमेश्वर ने उसको बोल दिया कि तुझे ऐसा करना है जो मैं कहता हूं। But God has given us a rule book, law book, love book, textbook. Everything is here to live our life. लेकिन परमेश्वर ने हमें एक नियम की पुस्तक दी है, प्रेम करने वाली पुस्तक दी है, समझने वाली पुस्तक दी है, उसके अनुसार हमें सब कुछ करना है। God will help us. परमेश्वर हमारी सहायता We करेगा। will walk like a Noah. हमें नूह के समान चलना है। Did anybody walk their way? We will walk in the ways of the Lord. यदि कोई भी अपने मार्ग में चल रहा है तो उनको चाहिए कि वो परमेश्वर के मार्गों पे चले। This is beautiful. Chapter 6 verse 21. और यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से पाया जाता है 6वां अध्याय 21वां पद। As a father, you need to pray the word of God. पिता होने के नाते आपको प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर के वचन के अनुसार। Come on, everybody read. You are to take every. I'm not going to leave you. Come on, everybody read. Come on, you are to take. That is to be and as and for them. Husband, father, the responsibility God has given on our shoulder, this is. और पति और पिता, परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी हमको यहाँ पर दी गई है बता रहा है वो उत्पत्ति का पुस्तक 6वां अध्याय 21वां पद में। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको लेकर तो अपने पास इकट्ठा कर रखना। Come on, God is saying you have to take every kind of food. You need to store it for you and all inside the ark. और कहता है कि उनको तो लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना जो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। God did not say, I will send manna inside the ark. No. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि जहाज के अंदर मैं मन्ना भेजूंगा। You have to do it. तुम्हें करना है। God is not a God phone speeding. और परमेश्वर ऐसा नहीं है कि आपको चम्मच के द्वारा भोजन खिलाए। Noah was a righteous man. नूह एक धर्मी व्यक्ति था, Holy man. पवित्र व्यक्ति। But you have to give for your family. You need to prepare to store for everyone inside the ark. लेकिन वहां पर कहते हैं कि तुझे सारी वस्तुओं को, जो भोज्य पदार्थ है, खाने का है, जो कुछ भी काम में आने वाले हैं, सारे पदार्थों को तुझे जहाज में इकट्ठा करके रखना है। There was no freezer. उस समय ना तो फ्रिज था, स्विगी नहीं है, जोमेटो टोमेटो नहीं है,
you are going to pack it. You are going to prepare it. You are going to store it. Not for 1 day, not for 2 days, not for 1 person, not for 2 person. आपको तो ऐसे तैयार करना है, एक दिन के लिए नहीं, एक व्यक्ति के लिए नहीं, 2 व्यक्ति के लिए नहीं, क्योंकि उस जमाने में ना स्विगी था, जोमेटो था, कुछ भी नहीं था। No freezer था, no ice था, पूरा पैक करके रखने का। But God said, you have to do means God will provide. Somebody say. लेकिन परमेश्वर ने Hallelujah. नूह को कहा कि तुझे करना है, सब बात परमेश्वर पूरा करेगा। God will give us the grace to prepare, store, give to our family, give everyone in our belongings. Somebody say. आमीन। परमेश्वर ने वो अनुग्रह हमें दिया है कि हम सारी बातों को हमारे भंडार में रखें और हमारे जितने लोग हैं उनको भी हम मुहैया कराएं। You know, when you read Bible, so don't read like a newspaper, don't read like a textbook. और जब- Feel it with your spirit. जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ये समाचार पत्र पढ़ते हो या कहानी पढ़ते हो, ऐसा नहीं पढ़ना है। आपको उसको पढ़ते समय के उसके अंदर की बातों को महसूस करना है। How many tons of food he would have stored? कितना टन, कितना किलो उसने भोजन पदार्थ जो है वहां पर अपने भंडार में रखा होगा। Not only human, animals are there, wild animals, elephant है। केवल एक एलिफेंट एक हफ्ता किसी का फैमिली को देंगे क्या? चलो, you will know what a grace God gave it to Noah. आपको जानना चाहिए कि परमेश्वर ने कितना अनुग्रह नूह को दिया था। पड़ोसी का कुत्ता एक दिन रखना भी नहीं हो रहा है ना? What a grace God gave to Noah. कितना अनुग्रह परमेश्वर ने नूह को दिया था। जो just don't read Bible religiously, read with understanding with the help of the Holy Spirit. एक धार्मिक रूप पे आप बाइबल का अध्ययन नहीं करें, लेकिन एक समझदारी पूर्वक बाइबल का अध्ययन करना है। Yesterday night Alan was reading Bible. I said 65 page I finished today, Papa. और बीती रात एलन बाइबल पढ़ रहा था और मुझे कह रहा कि पापा मैंने तो 65 पन्ने पढ़ लिए बाइबल में से। He took it from the office. No, he said, I want this, Papa. I want to read. 65. I said, कितना इतना पढ़ लिया तूने? और उसने यहाँ ऑफिस में से वो बाइबल लिया था और 65 पन्ने उसने पढ़ लिए और मैंने बताया क्या तूने इतना ज्यादा पढ़ लिया? Don't read like him. ऐसा नहीं पढ़ना है। Read and understand the power of the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की सामर्थ को समझते हुए उसको पढ़ना है, अध्ययन करना है। God has given us the grace. परमेश्वर ने उस प्रकार का अनुग्रह हमें दिया है। Come on, lift a hand and pray. Lord, though I don't want to be panicked when a guest come. I don't want to panic when people come. You have given the sources, resources to store and bless everyone, oh God. तो हम प्रार्थना करें परमेश्वर से और धन्यवाद करें प्रभु, जो कुछ भी आपने मेरे भंडार के लिए किया गया है प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। चाहे आपके घर में कोई मेहमान आए या कोई भी आए तो आप परेशान नहीं होना है। Thank you, Jesus. Come on, hallelujah. Your storehouse will never be empty. आपका भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। Come on, lift a hand and thank him. Hallelujah. हाथ Thank उठाकर you. उसको धन्यवाद करें। Even after your retirement, even your old age, you will give the way you give now. वो आप निवृत्त होने के बाद भी, आप बुजुर्ग होने के बाद भी जिस प्रकार से आप अभी देते आए हो उस समय भी आप दे पाएंगे। Come on, receive it. Hallelujah. Receive it वो in उसको Jesus' ग्रहण name. करें, यीशु के नाम में स्वीकारें। My house is like a Noah's house, मेरा घर तो नूह के घर के समान बन जाए, stored up with all facility, all goodness to bless everyone inside and हर outside. एक सुविधा से और हर एक भलाई से मेरा घर भरा हुआ रहे, अंदर के और बाहर के सभी लोगों के देने के लिए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Lacking nothing, oh Lord. कोई भी घटी नहीं प्रभु, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। No, literally, हम स्वर्ग जाते समय नोवा से पूछेंगे कैसे रखा यार? हाँ? How you preserved it? नूह को हम पूछेंगे जब स्वर्ग में जाएंगे कि तूने ये सब कैसे रखा, संभाल के कैसे रखा। हाँ, आप लीजिए ऑरेंज, दूसरा फ्रूट आता है बड़ा सा तरबूज, वो सब बाहर दिखता अच्छा है, 4 दिन के बाद अंदर कोका निकलता है। How this man would have kept it for so many days, for so many animals, so many birds. और कैसे नूह ने उस समय में इतना सारा भोज्य पदार्थ जो था बहुत सारे जानवर के लिए और सभी के लिए संजो के रखा था, संभाल के रखा था। This is what the Spirit of the Lord said.
he did everything what the Lord commanded him to do it. और इसलिए यहाँ परमेश्वर का वचन तो हमें इस प्रकार से कहता है, नूह ने उन सारी बातों को किया जो परमेश्वर ने उसको करने के लिए आज्ञा दिया था। God had already said to him, take this kind of the fruits, this kind of the seed, this kind of the wheat, rice, to preserve it for days and days. और परमेश्वर ने उसको बताया था कि तुझे ये फल लेके रखना है, ये खाद्य पदार्थ, ये धान्य तुझे लेकर के रखना है कई दिनों तक चलने के लिए। He obeyed completely. वो पूरी तरह से उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। Hallelujah. Hallelujah. The beauty of this, God put him inside the ark and God shut him outside. और परमेश्वर ने उसको जहाज के अंदर रखा और बाहर से उस जहाज के दरवाजे को बंद किया। He shut him from inside. He put him inside and God shut him outside. और नूह ने अपने आप को जहाज के अंदर रखा और परमेश्वर ने जहाज को बाहर से बंद किया। Not even a single water enter inside. एक बूंद पानी भी अंदर नहीं प्रवेश कर पाया। Sometimes you have to allow God to lock you inside. कभी कभी आपको भी परमेश्वर को आपको अंदर बंद करने के लिए अनुमति देना चाहिए। Hello? To have a divine protection in our house, give the keys to God. You lock me, Lord. अलौकिक सुरक्षा के लिए हमें चाहिए कि हमारे घर की चाबी जो परमेश्वर को हमें सौंपना है, तो कहना है प्रभु आप देखभाल करें। God remembered Noah. परमेश्वर ने नूह को स्मरण किया। The last one I just want to tell you, come on, Genesis 8 verse 20, Noah built altar to the Lord. और मैं ये बात बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति का 8वां अध्याय और पहली आयत में दिखा है कि नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। Verse 20, come on, 8 verse 20 says, the Noah built an altar to the Lord. 8वां अध्याय 20वें पद में हम देखते हैं कि नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। Verse 21 says, the Lord smelled the pleasing aroma. और 21वें पद में हम देख पाते हैं कि परमेश्वर उसकी सुखदायक सुगंध को लेकर के प्रसन्न हुआ। In all these things, he wanted to worship God. इन सारी बातों में वो चाहता था कि परमेश्वर की आराधना करें। He was thanking God. Thank God for all the things I stored. It was well sufficient for us. I want to give you sacrifice now. और नूह तो परमेश्वर की आराधना करते हुए कहता था कि प्रभु जो कुछ भी बातें आपने मेरे भंडार में रखा, सुरक्षित रखा, प्रभु उन सारी बातों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Genesis 9:1 says, then God bless everybody. Come on. Then God blessed Noah and his sons. उत्पत्ति 9:1 में यहाँ पर देखते हैं कि जब तब परमेश्वर ने नूह के पुत्रों को आशीष दिया। God blessed Noah. परमेश्वर ने नूह को आशीष दिया। Put your place put your name in the place of Noah. Come on. नूह के स्थान पे आप अपना नाम रखिए, नाम पढ़िए। God blessed Noah. परमेश्वर ने नूह को आशीष दिया। He wholeheartedly blessed him and he made a new covenant with him. और परमेश्वर पूरे दिल से उसको आशीषित किया और उसके साथ एक वाचा बांधा। A life and family is to be like a Noah. हमारा जीवन और हमारा परिवार नूह के समान बन जाए। Matthew 24:37-39, Jesus said, as it was in the days of Noah, so shall be at the coming of the Son of Man. मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 37 से 39 पद में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। Just like the day of Noah. और यहाँ पर 37वें पद में देखते हैं जैसे नूह के दिन थे। Ezekiel 14:14. एजेकियल 14वां अध्याय 14वां पद। Shall we stand in the presence of God? आइए परमेश्वर की उपस्थिति में हम खड़े हो जाएं। Ezekiel 14:14, a warning scripture. वो एजेकियल 14 वचन जो है एक चेतावनी का वचन है। Even if these three men, Noah, Daniel and Job, were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the sovereign Lord.
तब चाहे उसमें नूह, दानियेल और अय्यूब ये तीनों पुरुष हों तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। These three people lived for the righteousness. ये तीन जो मनुष्य थे धार्मिकता को लेकर के वो लोग जिए। God referring to Ezekiel, this people's name. और परमेश्वर एजेकियल को इन तीन व्यक्तियों के नाम संबोधित कर रहा है। These three men, इस तीन मनुष्य, they will only save themselves. और वो लोग केवल अपने आप को ही वो बचा सके। Noah, Daniel, Job, known for their righteousness, fear of God. नूह, दानियल और अय्यूब अपने धार्मिकता के लिए और परमेश्वर के भय के लिए जाने जाते थे। They are ready to be ridiculed for the name of the Lord. परमेश्वर के लिए वो लोग अपमानित होने के लिए भी तैयार थे। That people do anything, but we will serve the Lord. लोग कुछ भी हमारे साथ करें लेकिन हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। The Lord speaking to our heart. Do not harden your heart. परमेश्वर आज हमारे दिल से, हमारे हृदय से बातें करता है, तब हमारे हृदय को हम कठोर ना करें। Pharaoh hardened his heart 7 times. फिरौन ने 7 बार अपने हृदय को कठोर कर दिया। After that, God hardened his heart, Bible says. God hardened his heart 8th time. और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने फिरौन के जो है हृदय को 8 बार जो है उसको कठोर कर दिया। And God speaks, let's repent, let's come to Christ. परमेश्वर कहता है आइए हम पश्चाताप करें और मसीह के पास वापस आएं। Only Noah, Daniel, Job alone can save themselves. नूह और दानियल और अय्यूब केवल वो तीनों ही अपने आप को बचा सकें। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरे हर सांस तेरी स्तुति करते रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 Hallelujah. Help us, Lord. प्रभु हमारी मदद करिए। The month of family, as we look through your word of God, help us to build with your word of God. परिवार के जैसे प्रभु हम इस महीने में आपकी ओर देखते हैं, प्रभु आपके वचन से हमें भर दीजिए। We don't know, follow the world that is running today.
प्रभु जिस प्रकार से संसार जा रहा है इसे नहीं, The way that everybody is going, we don't want to go. प्रभु जैसे सब लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसे हम नहीं चलना चाहते। Our measuring rod, the word of God to guide us. प्रभु आपका वचन हमें गाइड करे, हमें चलाए, अगुवाई करे। प्रभु Every father, mother, lift up your hands, say, Lord, thank you for the family you have given to us, oh God. और एक माता पिता हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करे और कहे कि प्रभु जो परिवार आपने दिया है इसलिए आपका धन्यवाद। My house recognize only Jesus. Nothing, nobody is bigger than Jesus in our life. मेरा परिवार तो मसीह के द्वारा पहचाना जाए, मेरे परिवार के द्वारा यीशु पहचाना जाए और कोई बात उससे बढ़ करके नहीं। प्रभु Come on, hallelujah. Our vehicle to recognize Jesus. Our walk and talk to recognize Jesus. हमारा चलना और हमारा बोलना यीशु मसीह को पहचानना चाहिए। Even Lord, the way we walk in the market, the way we walk in our house, in the office, in our street, to recognize Jesus, we walk, O Lord. वो जैसे हम प्रभु मार्केट में चले, बाजार में चले, हमारे कार्यालय के अंदर, हमारे कार्य के स्थान पे हम चले फिरे, प्रभु उन सारी बातों के द्वारा यीशु पहचाना जाए। Sorry Lord, we have made Sunday as an idol, O God. We made Sunday as something bigger than other days, O Lord. प्रभु हम क्षमा चाहते हैं, हमने केवल रविवार को ही आदर्श बनाया प्रभु और बातों से बढ़कर बनाया। Come on, tell God, we will honor you 24/7. We will honor you all the days of our life, O Lord. वो आप परमेश्वर से कहें कि प्रभु हम आपका प्रतिदिन आपका धन्यवाद करेंगे, प्रतिदिन हमारी आयु के सारे दिन प्रभु आपको महिमा देंगे। Hallelujah, hallelujah. You lock us inside, you protect us, O God. प्रभु आप हमें अंदर बंद करिए प्रभु, आप हमें सुरक्षा दीजिए प्रभु। And you have filled our house with, you have stored all the goodness in our house to be a blessing to others, O Lord. ओ प्रभु आपने तो हमारे घर को, हमारे भंडारों को हर एक भली वस्तुओं से भरा है परमेश्वर, दूसरों को आशीष देने के लिए। Come on, your house will never be empty. Your house will bless every house, everyone. आपका परिवार, आपका भंडार कभी भी खाली नहीं रहेगा। आपका परिवार के द्वारा सभी लोग आशीष पाएंगे। Pray, come on, hallelujah. Your house, hallelujah, will be a blessing to every house that comes inside your house. आपका घर तो प्रत्येक घरों के लिए आशीष का कारण बनेगा। आपके घर में जितने भी लोग आएंगे वो आशीष पाएंगे। God has stored in your house His goodness. परमेश्वर ने अपनी भलाई को आपके भंडार में भर दिया है। Hallelujah. Hallelujah. Come on, hallelujah. Hallelujah. Thank you for filling our house with your goodness and grace, O God. प्रभु आपके अनुग्रह से और आपकी भलाई से आपने हमारे घरों को भरा है, इसलिए हम धन्यवाद कहते हैं। Come on, He has cleansed your house. No more violence, no more discord, no more corrupt words. His goodness has filled us. वो और ज्यादा कोई भी ऐसी बात नहीं, दुष्टता की और ऐसी बुरी बातें नहीं। आपको आपके परिवार में से परमेश्वर ने उन सारी बातों को शुद्ध कर दिया, निकाल दिया है। अब भलाई ही भलाई आपके घर में है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Bless every family, those who are especially struggling, Lord, financially and physically, sickness they are fighting, Lord. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष तौर पे जो परिवार परमेश्वर आर्थिक समस्याओं में संघर्ष कर रहा है, प्रभु जी बीमारी के कारण संघर्ष कर रहा है परमेश्वर। Declare a miracle, O God. हम उनके ऊपर आपके अद्भुत कार्य को बोलते हैं। Your hand to support every family, O Lord. आपका हाथ प्रभु हर एक परिवार के लिए सहायता करने के लिए है। Lord, our children are yours, O God. प्रभु हमारे संतान तो आपके हैं। You bless them, Lord. आप उनको आशीषित करें। You educate them. You bring them up in your holy fear, O Lord. प्रभु आप उनको पढ़ाए लिखाए प्रभु जी, आप उनको आपके भय और भक्ति में बढ़ाएं प्रभु। Come on, parents, pray for your children. Let them hold on to Jesus. वो माता पिता आप प्रार्थना करें अपने बच्चों को ऐसा बताएं कि परमेश्वर के ऊपर आश्रित बने। Let them stick on to Jesus, not to us. वो लोग मसीह यीशु को पकड़े रहें, हमें नहीं। Let them hold on to the holy word of God. वो लोग परमेश्वर के वचन को थामे रहें।
Let them walk with God. वो लोग परमेश्वर के संग संग चलने वाले बने। Let them depend upon God. उनको बताएं कि वो लोग परमेश्वर के ऊपर आश्रित बने। Give us your grace, O God. हमें ऐसा अनुग्रह दे प्रभु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। We thank you, Lord. प्रभु हम आपको धन्य कहते हैं। Thank you for your divine blessing that is filling us, O God. प्रभु आपकी स्वर्गीय आशीषों के लिए हम धन्यवाद कहते हैं प्रभु, जो हमें भर रही है। We give you all the glory, honor to you alone. सारा आदर महिमा केवल आपको देते हैं। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थी नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Shall we give a big hand to the Lord? Hallelujah. हालेलुया। Jesus. As we are in the presence of God, we are going to pray for those who are celebrating their birthday. We need to pray for Nirjara. We need to pray for Twinkle. We need to pray for Kiran brother's mom. We need to pray for Ravi brother. We need to pray for Sister Joy Priscilla. We need to pray for Sister Pranali. We need to pray for Shiny as they are celebrating their birthday this week. May the Lord's blessing be upon them. Shall we lift our hand and say, Lord, you bless them. Hallelujah. Their life be filled with the goodness of God. From heaven, blessing stored fully in their life, oh Father God. Lacking nothing, spoiling nothing, Lord, disturbing them nothing, oh Lord. Troubling them nothing. Nothing will topple them, oh Lord. That you will build them and bless them. Release your blessing upon them. As they celebrate their birthday, we thank you, Lord. We speak new things, oh God. A naya saal mein ek naya ashish. We speak over Nirjara. We pray for Twinkle, oh Lord. We pray for, Lord, Mummy. We pray for Ravi brothers. We pray for Joy. Lord, hallelujah. We pray for Pranali sister. We pray for Shiny. Bless them, Jesus. Bless them wherever they are. Hallelujah. I pray full of your peace, presence, filling their heart, house, life, oh Lord. Glorify your name. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's lift a hand for the blessing of God. Come on. Hallelujah. Parmeshwar ko dhanyawad denge. Let's give thanks to the Lord. He woke us this morning. He brought us to the house of God. Thank you, Lord, for Grain City Bible Church. Lord, all the pioneers, the elders, Lord, all those who are helping us behind the screen. Lord, all the families and the families yet to join, the team yet to join. Lord, bless, oh Lord, all those who are watching us online. Bless them, oh Lord. Hallelujah. Fill their house with your goodness and provisions, oh Father God. Now may the Lord bless you. May the Lord keep you. May His light shine upon you. He will be gracious to you, filling you with His favor, knowledge, wisdom, understanding, peace, and the presence of God. He will speak to you when you read the word of God. He will speak to you through visions and dreams, strengthening you, just like Noah's house found favor in the eyes of God. Your eyes, your house, and God's eyes upon you. Now may the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, love of our Heavenly Father, sweet communion of the Holy Spirit of God be with us as the Lord was with Noah, instructing, helping to construct, to save. He will help us also till Jesus return or we return. And all God's children say, Amen. We give all the glory to Jesus and tell of His love, His wonderful love. We give all the glory to Jesus and tell of His wonderful love, and tell of His wonderful love. Bola Maharaj Yishu Masih ki जय Raja Yishu Masih ki जय। God bless you all. Thank you for coming. यदि आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट है, आप आगे जा सकता है. We have, brothers pray for you. God bless you all.